एक ऐसी हस्ती को जिन्होंने बड़े पर्दे पर हमें हँसाया भी है, रुलाया भी है। उन्होंने हमें शान से कहना सिखाया है, हम हैं इंडिया वाले। प्लीज वेलकम इंडिया सुपरस्टार एंड टीम ओनर जयपुर पिंक पैंथर्स, मिस्टर Abhishek Bachchan. Thank you so much for joining us. Thank you for having me. Thank you, Sachin. It's always a pleasure to see you in person or virtually. Congratulations to you on this amazing and the first ever sports docu-series in India on Amazon Prime Video, Sons of the Soil. अभिषेक, मैंने आपको प्रो कबड्डी में जयपुर पिंक पैंथर्स के हर एक मैच में देखा है. You're present there. I personally know that you're one of the biggest fans of the sport and supporters of Jaipur Pink Panthers. You know, Abhishek is always going yes on every raid point, tackle point. He's there, and that excitement and enthusiasm, we just love it. हमें बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस डॉक्यू सीरीज का हिस्सा बनने का, स्पोर्ट्स डॉक्यू सीरीज का हिस्सा बनने का? सबसे पहले Sachin, a warm welcome to all the members of the media. Thank you for being here and supporting us. This entire journey would not have been possible without the support, belief, and love that Amazon Prime Video has not only shown me but the team. Their vision to put this through, the team from BBC who just did such a fantastic job of making this docu-series. It's a very, very historical moment for me as a sports fan, to be here today to launch Sons of the Soil, which is being made on a team of mine in Kabaddi. You know, hats off to the Amazon Prime Video team, because I think they've always been at the forefront of sports documentary. In various other sports on their platforms, you know, All or Nothing being, I think, the flag bearer of the forefront and the best in sports docu-series. And it's a matter of huge honor that the first sports docu-series that they make in India with an Indian sport is on the Jaipur Pink Panthers, Sons of the Soil. It is a no-holds-barred, very honest look and documentation of what all happens in putting a Kabaddi team together. This journey would not have been possible without, obviously, the blessings and guidance of the entire management of Jaipur Pink Panthers. And last but not the least, you know, the players. They're the stars of the show. They're the stars of Kabaddi. They're absolutely brilliant. They're some of the greatest athletes on earth. And I hope that not just people in India and fans of Kabaddi, but I hope through this docu-series and through the wide network that Amazon Prime Video has, we can reach out to a whole new audience. I have a lot of friends who live internationally, who are not Indian. For my school, for my college days, they all are aware of Sons of the Soil coming up, and they can't wait. So I'm so happy that thanks to this docu-series, we get to take the sport of Kabaddi to an even wider audience, to see the passion, the love, the heartache, the victories, the highs, the lows of the sporting world of Kabaddi, and take this beautiful sport of India's, which is really the pride of India, to an international audience. And like I said, I think BBC and Amazon Prime Video has made a very honest docu-series. You know, I haven't seen the entire thing yet, but the one thing that they were very clear about, that look, this is not going to be a puff piece on Kabaddi. This is going to be a no-holds-barred, very honest, microscopic view of how a team plays, runs, prepares, and deals with victory and failure. What happened in the season is there for everybody to see, but I think they've done a wonderful job of taking everybody through an emotional journey. And I think that's what makes sports so valuable, and why we invest emotionally in the sport is because of the emotions our players have. And I think, you know, through the docu-series, they've done a wonderful job of bringing those emotions out, what it means to these boys, you know, to play for Kabaddi, to represent Jaipur Pink Panthers, to play for India when they play in the national level, and really see how difficult a life they've all led and what all sacrifices they've had to make to be at this platform. And so firstly, I want to thank, we have a lot of our team players. I'd like to thank them for taking the time out. During the pandemic, I know it's been very difficult for them, but they've still taken the time out and been here. And I want to thank again the entire Amazon Prime Video team, which I have such a wonderful relationship with. You know, I feel very comfortable on these OTT platforms right now. I mean, I started the year off brilliantly with Breathe Into the Shadows with them. They've been fantastic. A movie of mine released 2 weeks ago
Ludo, and now I have Big Bull coming up later on. And icing on the cake for me is Sons of the Soil, which comes on Amazon Prime Video. Like I said, it's like a family to me. I'm very comfortable working with them, and I'm comfortable because they really believe in putting out great content, and content that not only appeals to the Indian viewer, but also can take Indian content internationally. And I thank them profusely for giving us this opportunity. Thank you so much, Abhishek. Thank you so much. And we are proud that an Indian sport has been taken to the global platform at such a large scale. And you and your team have been instrumental in that. So thank you once again. And aapko bahut bahut badaiyan on this amazing docu-series, sports docu-series. Ladies and gentlemen, अब मैं आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एक ऐसे हस्ती को जो बॉलीवुड की दुनिया में काफी प्रसिद्ध है. इन्होंने जयपुर पिंक पैंथर्स का ऑलराउंड मैनेजमेंट किया है from day one of Pro Kabaddi League की शुरुआत से. I'm talking about 2014. Please welcome Bunty Walia. Welcome, sir. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एक स्पोर्ट्स डॉक्यू सीरीज का हिस्सा बनने में, जिसे इंडिया को सबको इस खेल का दीवाना बना दिया है? Thank you, Sachin. Good afternoon to the members of the press. Hi, Aparna, Sameer, Abhishek, Coach Reddy, players Deepak Hooda, Narwal, Sandeep Dhol, Amit Hooda, Nilesh. It's been an absolute pleasure and an immense feeling of pride to be a part of this documentary featuring the popular sport of Kabaddi. And I thank Abhishek from the bottom of my heart for making me a part of it since its inception. And I hope this sports documentary resonates well with the audience, not only in India, but globally. And I thank BBC, I thank Aparna from Amazon Prime Video for making this remarkable documentary. And I just wish everybody all the best. And I just hope that everybody loves what they think and will get to know about the Jaipur Pink Panthers. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Walia. Thank you. और दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमारे असली सन्स ऑफ द सॉइल से मिलने का. जैसा अभिषेक ने कहा कि इस खेल को इन स्टार्स ने बनाया, इन खिलाड़ियों ने बनाया, इन कोच साहब ने बनाया. सो इन्होंने कबड्डी की दुनिया में अपना एक नाम कायम किया, एक चैंपियन की तरह लिख दिया अपना नाम, जो आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा. तो चलिए मिलते हैं इन चैंपियन से. सबसे पहले इस मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा श्रीनिवास रेड्डी, इंडियन नेशनल कबड्डी प्लेयर एंड कोच रह चुके हैं. इंडियन टीम के अलावा इन्होंने ओवरसीज टीम साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया को भी कोच किया है. प्रो कबड्डी लीग में इनका सफर एज एन असिस्टेंट कोच शुरू हुआ था विद तेलुगु टाइटंस एंड हरियाणा स्टीलर्स, और सीजन 6 में he was made the head coach of Jaipur Pink Panthers. We are indeed honored to have you with us, sir. Thank you so much for joining in. Thank you and welcome. Thank you so much, sir. Thank you so much. Pleasure and welcome. First of all, I would like to thank Abhishek sir for giving this wonderful opportunity to work with Jaipur Pink Panther team. तो मेरे लिए बहुत ही नसीब की बात है सर इनके साथ काम करने के लिए. और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहूँगा, क्योंकि कई टफ टाइम भी आ चुका है इस जर्नी के अंदर. इस पार्ट में मुझे भाग बनाने के लिए मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर. थैंक यू सो मच सर. Thank you, Srinivas Reddy ji, and you've also made us proud. So thank you. Thank you, sir. Next, Deepak Nivas Hooda. Now, इनके बारे में जितना कहें उतना कम है. He is the current captain of Indian national kabaddi team and the Jaipur Pink Panthers को इन्होंने अपने लीडरशिप में ऊंचाइयों तक पहुंचाई. He is captain Jaipur Pink Panthers. India's gold medal winning side के member रह चुके हैं in 2016 Kabaddi World Cup, 2016 and 2019 South Asian Games, Dubai Kabaddi Masters and 2017 Asian Kabaddi Championship. Deepak Nivas Hooda has also been awarded with the prestigious Arjuna Award in 2020. Deepak Nivas Hooda, स्वागत है आपका. Next, we welcome. Thank you, भाई. दीपक नारवाल. ये इंडियन रेलवेज टीम के मेंबर हैं और ये अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं. अपनी रेंज में इन्होंने अपना डेब्यू प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स के साथ किया. नाउ ही इज जयपुर पिंक पैंथर्स. दीपक नारवाल, स्वागत है आपका. नेक्स्ट, अमित हुड्डा. He's a right corner defender who made his debut in Pro Kabaddi League with Patna Pirates. Now, Amit was part of the Jaipur Pink Panthers team in season 4 as well when the team finished as runners-up. Now, Amit Hooda is one of the most lethal right corners in the game and plays for his employer's income tax and his stateside Haryana as well. Welcome, Amit Hooda. Swagat hai aapka. Thank you, bhai. Thank you. Nilesh Salunke is an experienced trader who began his PKL career with Puneri Paltan.
He has featured for the Telugu Titans as well as before playing for Jaipur Pink Panthers. Now, Nilesh plays for his employees income tax and has won the senior national championship with his state side Maharashtra. Nilesh, स्वागत है तुझं. Thank you, sir. And last but not the least, please welcome Sandeep Dhul, a young left corner defender who made his debut in Pro Kabaddi League with Dabang Delhi PC. He has been one of the top 5 defenders in PKL over the past couple of seasons with Jaipur Pink Panthers. He plays as a left corner for his employers, Indian Railways as well. Sandeep Dhul ji, स्वागत है आपका. Thank you, sir. Ram sir. Well, दोस्तों ये तो है हमारे असली सन्स ऑफ द सॉइल, हमारे चैंपियंस, हमारे स्टार्स. चलिए अब कुछ दो बातें करते हैं हमारे इन चैंपियंस से. और हाँ, आप जो हमारे साथ जो जुड़े हैं, all our friends from the media, I'm sure you have a lot of questions that you want to ask, all the representatives, the players, the coach, the stars with us on this virtual space. You can definitely do that. We will be opening the floor for the Q&A. Request you to write in your questions in the chat box at the bottom of the screen. A humble request, please write whom you want to ask the question to, the name of the individual, then your name and the publication that you belong to, and then the question. So that it just simplifies the entire process. आसानी होगी, हमें पता चलेगा आप ये सवाल किससे पूछना चाहते हैं, तो उस शख्स से हम ये सवाल एड्रेस कर सकते हैं. So with that, मैं मेरे थोड़े सवाल हैं पहले पूछ लेता हूँ before we open the floor for the Q&A. श्रीनिवास जी, आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले. सर, आपकी टीम में एक बैलेंस्ड मिक्सचर है जयपुर पिंक पैंथर्स में ऑफ यंग एंड एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स, जो आपकी टीम को एक अनबीटेबल टीम बनाती है. सो मेरा सवाल ये है कि पेचीदा सवाल है कि कितना टफ होता है या आसान होता है एक ऐसी टीम को कोच करना जिसमें एक्सपीरियंस भी है और यंग पैशन भी भरा है. एग्जैक्टली सर, आपने जो बात कही थी सही, 100% सही है. क्योंकि फॉर्चुनेटली इस टीम के अंदर जितने भी बंदे हैं, उनका जर्नी मेरा जर्नी एक ही साथ शुरुआत हुआ था. तो एज असिस्टेंट कोच, जैसे दीपक हुड्डा है, नीलेश सोलंकी है, संदीप दुल है, कई लोगों के साथ मेरा जर्नी बहुत पहले से शुरू था. जब मैं जयपुर पिंक पैंथर के हेड कोच बना था, उस टीम का हिस्सा बनाया मैंने विद द परमिशन ऑफ अभिषेक सर. तो इनके साथ काम करने के लिए मुझे हमेशा मजा आता था और चैलेंज भी लगता था, क्योंकि मैं उनको मेरा स्टूडेंट से ज्यादा मैं उनका भाई मानता था, प्लेयर से ज्यादा मैं भाई मानता था, क्योंकि गुस्सा भी होता था, प्यार भी करता था, उनका केयर भी करता था. तो टफ टाइम भी था, थोड़ा मजाक भी टाइम भी था, अच्छा था, मतलब कुल मिला के. श्रीनिवास जी, ये आपने काफी सारे यंग प्लेयर्स को कोच किया है, ट्रेन किया, तराशा है और उन्हें स्टार्स बनाया है. ऐसी कौन सी चीज है आप मानते हैं कि जो खींच लाएगी यंग प्लेयर्स को इस स्पोर्ट्स डॉक्यू सीरीज को देखने के लिए? डेफिनेटली सर, क्योंकि हमने जब शुरुआत किया था इस खेल को, हमने ये सोचा था इस मुकाम तक हम अभी जहाँ बैठा है हमने वहां तक पहुंचेंगे. क्योंकि हमने जब कबड्डी का जर्नी शुरू किया था, हमने 0 से शुरू किया है. व्हाटएवर वी आर टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गेम. इस गेम ने बहुत कुछ दिया है. हम यही चाहता है आने वाले जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, इस वीडियो को देख के इंस्पायर होके मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन प्लीज ज्वाइन विद अस एंड कबड्डी सीखो. कबड्डी में जितना मजा है, आपको इसके अंदर बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे, आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और इस गेम में आपको नेम के साथ साथ फेम भी मिलेगा और अच्छा लगेगा सर. थैंक यू सो मच श्रीनिवास जी. सो अगर दिल में चाह हो तो ये सीरीज आपको बताएगी कि इफ यू हैव द विल, डेफिनेटली यू गेट द वे एंड यू विल मेक इट. दीस आर ऑल आवर स्टार्स. थैंक यू श्रीनिवास जी. थैंक यू सर. अगली बातचीत करते हैं उस दीपक से जिसने अपने हुनर के दीपक जलाए और अपना नाम रोशन किया है. दीपक निवास हुड्डा, यू आर फेमस एज मिस्टर डिपेंडेबल. आपके फिटनेस के चर्चे हमने काफी सुने हैं, हमने सोशल मीडिया पे देखा. यू आर अ जिम फ्रीक, यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट कैप्टन्स इन प्रो कबड्डी लीग. इन सब अचीवमेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हैं और कैसा एक्सपीरियंस है आपका इतनी कम उम्र में काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलना और एक सक्सेसफुल टीम का कैप्टन बनना? बिकॉज हमने मैच पे देखा है कई बार प्लेयर्स सुनते नहीं है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को? थैंक यू सचिन भाई, पहले तो आपने इतनी अच्छी तारीफ की मेरी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्रेशर हैंडल करना मैंने सीखा है मेरी लाइफ के स्टार्टिंग से ही है. और इस डॉक्यू सीरीज में आपको ये देखने को मिलेगा सभी को कि हम किन परिस्थितियों से ऊपर उठकर आए थे, हमारा क्या बैकग्राउंड था, कितनी प्रॉब्लम्स हमने झेली है. और फिर रही बात एक्सपीरियंस की, तो मैं पहले भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ रहा हूँ, इंडिया टीम में हूँ या फिर लीग में थ्रू आउट द लीग पहले सीजन से खेल रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस तो हो गया है.
और जैसे आपने बताया कि ये मेरा सौभाग्य है, मेरी किस्मत अच्छी है। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मैंने मेहनत की तो मुझे अच्छा मिला। जल्दी इंडिया टीम का कैप्टन भी बना, लीग में भी कैप्टनशिप कर रहा हूँ, इतना बड़ा अवार्ड भी मिला मुझे। तो सब देखो, सौभाग्य की बात है। मेरा काम मेहनत करना है। मैं हमेशा से ही काम में बिलीव करता हूँ कि वर्क जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। और ये फिटेस्ट तो आप ही बोलते हैं स्टार स्पोर्ट्स वाले, मेरा काम तो मेहनत करना है बस। और हैंडल करने में देखो, ये प्रोफेशनल लीग है तो सभी बच्चे समझदार आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लीग में जब सिलेक्शन होता है तो बच्चे का वो इतना तो है नहीं कि बच्चा रह जाता है, लेकिन फिर भी वहां पे मैच्योरिटी लेवल हमारा तो हाई होता ही है। और फिर एक कैप्टन की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यंग प्लेयर्स हैं और जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उन सबके साथ मिलके टीम को कैसे बैलेंस करना है, कैसे खेलना है। परफॉर्मेंस अप डाउन होती रहती है, गेम है ये, हार जीत भी होती रहती है। लेकिन अभी बर्डन नाम की या कोई ऐसी प्रेशर की बात आती नहीं, क्योंकि कई साल से खेल रहा हूँ तो एक्सपीरियंस हो गया है। और जेपीपी के साथ जुड़कर तो जब मेरा 6 सीजन में ऑक्शन हो रहा था तो मैं मुंबई स्टूडियो में था स्टार स्पोर्ट्स के। तो जब मुझे ये पता चला कि लास्ट में मेरी ने लिया, तभी इतनी ज्यादा खुशी हो गई थी। देखो, ओनर सभी अच्छे हैं, प्रोफेशनल लीग है ये, और सभी अपनी टीम के लिए बेहतर करते हैं। लेकिन जो अभिषेक बच्चन सर के लिए फीलिंग आती है ना, मतलब दिल से, कि हाँ उनकी टीम में जा रहे हैं, क्योंकि ये एक मोटिव लीग है लिए, पूरे एंटायर कबड्डी वर्ल्ड के लिए एक मोटिवेटर है। इन्होंने इतना ज्यादा दिया कबड्डी को, पहले सीजन से लेकर ये प्रो कबड्डी स्टार्ट करने में। और हम किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, कितना भी टफ टाइम हो, एज ए मोटिवेटर ही रहते हैं हमारे साथ, एज ए बड़े भाई, एज ए दोस्त की तरह, कभी ओनर की तरह रहे नहीं। तो इस टीम में मुझे कोई प्रेशर वाली बात कभी दिखाई नहीं दी। थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू। और इसी की झलकियां हमें देखने मिलेंगी सन्स ऑफ द सॉइल जयपुर पिंक पैंथर्स में। अगले बढ़ते हैं दीपक निवास हुड्डा के ही जुड़वा नाम वाले दीपक नारवाल। दीपक, स्वागत है आपका फिर से। आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ श्रेय जो जाता है आपके पिताजी को जाता है। आपके पिताजी ने काफी सेक्रीफाइसेस, काफी कठिनाइयों का सामना किया है और आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है। क्या हमें इस सफर की झलकियां इस स्पोर्ट्स डॉक्यू सीरीज में देखने मिलेंगी? थैंक यू भाई। हाँ जी, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा आपसे। मैं जो अपनी स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री है अमेजन, तो इसमें बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे कोई फादर या कोई कोच अपने बच्चे, अपने प्लेयर को टीनेज से उसको तैयारी उसकी स्टार्ट करवाता है, बहुत सारी मिस्टेक्स करता है बच्चा, फिर वो एक बचपना सा, फिर उसके बाद स्ट्रगल, और उसके बाद बहुत सारी डांटें, फिर खिलाना, डांट से खिलाना, बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को ऐसे देखने के लिए हर कोई अपने बच्चे को खिलाना चाहता है, गेम में, स्पोर्ट्स में आप करना चाहता है। तो वो ऐसी ऐसी स्टोरी जो एक कॉमन सी है, बहुत फैमिली को अट्रैक्ट करेगी। और मेरे फादर जी खुद भी 2002 के एशियन गेम्स के कबड्डी प्लेयर रहे हैं, तो उनकी जर्नी भी बहुत हार्ड थी। जो उनका ग्राउंड रहा गाँव में, वही मेरा ग्राउंड है आज भी। तो वो सेम चीजें हैं, लेकिन हाँ, एक वर्कआउट का सेशन ऐसा है, अब हमारे पास फैसिलिटी आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ 2 ही चीज हुआ करती थी, मॉर्निंग इवनिंग वर्कआउट, और बहुत कुछ था नहीं। तो एक एज फैक्टर, उसके बाद जो इतना स्ट्रगल, जाना प्रो कबड्डी लीग में जाना, जब कबड्डी हमने खेलना स्टार्ट किया, पीकेएल नहीं आया था, जस्ट इंजॉय या फिर मेजोरिटी के लिए गेम खेला जाया करता था। तो प्रो कबड्डी में आना, अच्छा परफॉर्म करना, सीजन 2 से स्टार्टिंग करना, सीजन 7 में अभिषेक सर के साथ रहना, और सीजन 7 में खुद में जो एक अपॉर्चुनिटी है टीम के लिए अच्छा करना, खुद के लिए अच्छा करना, तो एक काफी अच्छी फीलिंग। दीपक, एक अंदर की बात पूछना चाहूंगा कि हमें तो बहुत पड़ी है बचपन में, कि आपको डांट पड़ी है, आपको कभी डंडे पड़े हैं पापा से? हाँ जी सचिन भाई, बिल्कुल, बहुत ज्यादा वो होता है, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है घर में, अगर फादर ही कोच होता आपके, और उसी फील्ड के, जिस फील्ड में आपके फादर कुछ रहे हैं, अचीवमेंट करिए, उसी फील्ड में आप हो, तो बहुत डांटे। उनको पता है अगर ये राइट मुड़ा है तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट मुड़ा तो कहाँ जाएगा। बहुत सारा एंजॉयमेंट, ये लगा लो, लाइफ पूरी स्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, मजा है मेहनत की लाइन में, इम्प्रूव की लाइन में, परफॉर्मेंस या लाइफ प्रोग्रेस और फ्यूचर की जो लाइन है, वो 100% सिक्योर रहती है, क्योंकि उनकी नजर में रहती है। वो हर बार बोलते हैं यहाँ से ये, यहाँ से ये, वो हर छोटी से छोटी बारीकी की नोटिस करते हुए करते हैं। और मेरे डैडी की तो बहुत अच्छी हैबिट है, बोलते हैं मिस्टेक करो,
लेकिन हर बार नहीं। और फिर डांट भी सुनो और पिटाई भी 2-4 बार अच्छी हुई, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो रही है, अब नहीं होती। हम सब ने खाई है यार, हम सब ने खाई है। गलतियां करो पर गलतियों से सीखो। एंड बहुत बहुत आपके पापा को सलाम, और हम शुक्रगुजार हैं कि थैंक आप यू भाई, उन्होंने हमें ये स्टार दिया है, दीपक नारवाल। थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अगला सवाल है अमित से। अमित, खेलने में और कबड्डी खेलने में और वीडियो शूटिंग में काफी फर्क है। खेलते वक्त आप जब स्टेडियम में होते हो या कहीं भी खेलते हो तो काफी सारा सपोर्ट होता है, लाखों हजारों लोग बैठे रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कबड्डी। सो ये जो वीडियो शूटिंग वाला एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, कि दिल खोलकर खेलना और शूटिंग में काफी सेट होता है, पहले बताया जाता है कि अब आपको करना है, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा इस डॉक्यू सीरीज को शूट करते वक्त? ये अच्छा ही रहा काफी, मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम हमारे को आया नहीं। हमने इसको भी इंजॉय ही किया है, शूटिंग को भी, मतलब ऐसे प्रेशर में लेके नहीं किया ना ही हम कभी गेम में प्रेशर लेते हैं ना कभी शूटिंग में लिया, ऐसे एंजॉय किया। लेकिन वहां पे थोड़ा चुप रहना पड़ता है, बार बार बोलते हैं साइलेंट साइलेंट, तो बस और ज्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। Okay, cool. The man of few words. Thank you so much, Amit. Thank you, भाई. Thank you. And साइलेंस तो मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा क्योंकि आपका वर्चुअल स्पेस है, दिल खोल के बोलिए। एंड अगला सवाल निलेश साळुंके से। निलेश, तू महाराष्ट्राचा आहेस म्हणून मी तुला परत मराठीत तुझं स्वागत करेन, आणि आम्हाला गर्व आहे की तू तुझं नाव एवढं मोठं केलंस जगभरात, आणि त्यासाठी आम्हाला खूप खूप गर्व आहे तुझ्यावर। आणि निलेश, माझा प्रश्न है जो मैं हिंदी में भी मैं दोहराऊंगा, पर सो दैट जस्ट वो एक फीलिंग आती है ना, वो कनेक्ट व्हाय, तो मैं वो एक मराठी वाली एक तुला प्रश्न हा आहे की पीकेएल सुरू व्हायच्या आधी आणि पीकेएल सुरू झाल्यानंतर जेव्हा तू आता जयपुर पिंक पॅन्थर्स मध्ये आहे, आयुष्य कसं बदललं? सवाल ये है कि पीकेएल शुरू होने के पहले और पीकेएल शुरू होने के बाद जो टीम्स के साथ खेले और अब जब जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ हो, जिंदगी कैसे बदली आपकी? पहिले सर्वांना नमस्कार करतो आणि सुरुवात करतो, कारण की सुरुवात मी खूप शून्यापासून केलेली आहे। आम्हाला म्हणजे राहायला घर पण नव्हतं, आम्ही भाड्याच्या मतलब मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप हिंदी में जवाब दे तो ओके 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 हमारे सॉरी जो सारे फ्रेंड्स हैं वो पूरी ओके ओके इंडिया से। थैंक यू। मैं स्टार्टिंग जो किया 0 से स्टार्टिंग किया है, जो मुझे मतलब रहने के लिए घर भी नहीं था। मैं मतलब बहुत छोटे से घर में, मतलब हम लोग भाई बहन सब माँ पिताजी सब साथ में रहने के, तो मतलब इतना ऊपर आना मतलब ऐसे छोटी छोटी बात नहीं है। मतलब ये बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी मुझे। मुझे जो कोच थे, मुझे कोच लोगों ने सपोर्ट किया। मुझे डाइट करने के लिए पैसा नहीं था, दूध अंडा देने के लिए मुझे जो कोच है मुझे यशवंत यादव, उन्होंने सपोर्ट किया, रमेश भेंडी सर ने सपोर्ट किया। तो खेलते खेलते गया, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे भी था, मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में एयर इंडिया में था कॉन्ट्रैक्ट पे। एक महाकबड्डी खेला, महाकबड्डी भी मतलब उधर बेस्ट प्राइज मिला मुझे। उसके बाद फिर प्रो कबड्डी में आने के बाद मतलब मैं घर लिया, एक छोटा सा एक नया घर लिया। उसके बाद में बहुत सारी स्टोरी है। फिर मुझे प्रो कबड्डी खेला मैं फर्स्ट पुनेरी पल्टन में, उधर तभी मुझे कुछ चांस नहीं मिला। तो फिर बाद में मुझे तेलुगु राइडर्स में मुझे बहुत सारा खेलने के लिए चांस मिला और मैं कुछ करके दिखाया। फिर बाद में मेरी ख्वाहिश भी थी, मतलब तभी खेलते समय मैं अभिषेक सर से मिला। मतलब मुझे ख्वाहिश भी थी, मैं मतलब जेपीपी में खेलूं, मैं खेलना चाहता हूँ। तो मुझे ये साल में मुझे मौका मिला, और जो मैं ये लेवल तक मैं अभी तक पहुंचा हूँ, मैं नेशनल खेला हूँ 4 बार, ये लेवल तक मैं पहुंचा हूँ। अभी मुझे लास्ट मतलब अभी और मुझे जेपीपी में मैं खेलना चाहता हूँ, और मुझे खेलने का चांस देंगे तो बहुत अच्छा होगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और जो कुछ मेरी जो स्टोरी है, जो मतलब जो भी मेरी जो मतलब जो लाइफस्टाइल है पूरा, मैं कहाँ से कहाँ तक पहुंचा हूँ, वो पूरा जो अपना जो सीरीज आ रहा है, वेब सीरीज जो अपना सन ऑफ द सोयल, उसमें सब मतलब डिक्लेयर होगा, वो सब दिखाई देगा। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस सफर को देखने के लिए, और हमें आप पे बहुत बहुत गर्व है। थैंक यू सो मच निलेश, थैंक यू। संदीप धुल, अगला सवाल आपसे है, और फिर से अंदर की खबर पूछना चाहूंगा, थोड़ा खुलकर जवाब देना। एक सीनियर कोच और एक एक्सपीरियंस कप्तान, इन दोनों में से कौन है जो ज्यादा मशक्कत करवाता है, मेहनत करवाता है? कौन है वो? टफ क्लास, बेसिकली टफ क्लास कौन लेता है आपकी? सर जैसे हमारे कोच सर हैं रेड्डी सर, इनके साथ मैं पहले भी सीजन 4 में रहा हूँ, तेलुगु टाइटन में, और अभी जयपुर पिंक पैंथर में 2 साल से रह रहा हूँ। तो ये हमारी बहुत ही अच्छे से मेहनत करवाते हैं, और मैच पे
इनके साथ हमारा अलग रिलेशन है और ग्राउंड से बाहर वो हमारे अलग है। ग्राउंड से बाहर हमें हमारे साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं, एज ए फ्रेंड रहते हैं और बहुत ही कुछ अच्छे रहते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू संदीप, और आपको ऑल द बेस्ट। अगला थैंक सवाल यू सर। Sameer Gupte. Sameer, this is BBC Studios India's first docu-series, sports docu-series. Now, what is the toughest part or challenges to make, a sports docu-series that is entertaining yet true to the essence? Sachin, they say today truth is more palatable than fiction. And one of the biggest principles, as our showrunner Neha, who's been the heart and soul of the show, says that it's very important to be honest to the people and the world in which they are when you do a sports docu-series. And I think we've been able to maintain that rawness, honesty, and carry that emotion through this series. And that's the biggest challenge, in a docu-series. You are filming on the go. It's not scripted. You're filming what you see, and you create a show later on the edit table. So it's extremely important that we be honest to these people, to these humble and hardworking players. And you'll see a very different side of them in this show. The other remarkable thing is that this sport has seen a very remarkable journey from the soil to the stadium. But these players will always remain truly the sons of the soil. Well put there, absolutely. Our grounded stars. And thank you, Sameer. Aparna, Thanks, my next Sachin. question is for you. Amazon Prime Video ने कई अद्भुत स्टोरीज को प्लेटफॉर्म दिया है थ्रू Amazon ओरिजिनल शोज जो फिक्शन स्पेस में आते हैं, बट ये एक स्पोर्ट्स डॉक्यू सीरीज है जो लोगों को बिहाइंड द सीन्स लेकर जाएगी एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल चैंपियन टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के। सो व्यूअर्स के लिए क्या इनसाइट्स है, क्या ऐसे शानदार लम्हे हैं दैट दे कैन लुक फॉरवर्ड टू इन द सीरीज? Sports is a recreational hobby for some, it's a passion for others, but it's the entire life for those that are featured in the series. इस शो में सबके लिए उनकी पसंद का कुछ ना कुछ जरूर होगा. The adrenaline rush of the sport for the fans, emotional, personal stories of the players, for the others, the never seen before locker room view of the team, including their interactions with the team owner, the captain, the coach, the entire family of JPP. सच कहूँ तो टीम का संघर्ष, उनका संकल्प, उनकी मेहनत और अपने खेल के लिए उनका जो जज्बा, उनका जो जुनून है, वो इसमें देखने को मिलेगा. Sons of the Soil is unplugged, it is unfiltered. We look forward to this inspiring journey and the way you put it कि खेल के लिए जुनून, जो जज्बा है, वो सारा कुछ हमें देखने मिलेगा इस सीरीज में. एंड अगला सवाल बंटी जी आपके लिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आए? सिंस यू आर फ्रॉम द एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे लिए एक्सपीरियंस एक धमाकेदार था, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एंटरटेनमेंट में धमाके की जरूरत होती है, और कबड्डी जिस तरीके से इस स्पोर्ट्स की दुनिया में आया, एक धमाके से कम नहीं था. ये आपने इन प्लेयर्स को भी देखा कि ये सन्स ऑफ द सॉइल हैं, कितने हम्बल हैं और ये कहाँ तक पहुंच गए हैं. तो मेरे लिए एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री से मैं हूँ, और इनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों का अगर मेल होगा तो एक धमाका होगा. और मैं इसका श्रेय अभिषेक बच्चन जी को दूंगा, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में सोचा, हमें इन्वॉल्व किया और कहा कि इस टीम को आप चलाओ, और उनकी दृश्य के अंदर हमने उनके विजन की जो उनका विजन था उसको फॉलो किया और पूरी कोशिश की, जी जान लगाई. मेरी टीम ने, जो भी जेपीपी के मैनेजमेंट के लोग हैं, विंग कमांडर रमेश हैं, राजेश जी हैं, सब है, नाइजल है, मनोज है, जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपनी पूरी जो ताकत है इसमें लगा दी. और इनके लिए जुनून सा बन गया, जैसे अपर्णा जी ने भी बोला कि जुनून, जज्बा, ये सब हम लोग ने हमारी जो पर्सनल जो चीजें हैं वो सब उसमें डाल दी, खून पसीना सब इसमें डाल दिया कि ये स्पोर्ट आगे चले, ये प्लेयर्स आगे उभरे और ये स्पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन, इंडिया का अपना स्पोर्ट दुनिया के एक अपना खुद का मकाम बना सके. और ये हमारा एक्सपीरियंस जो एंटरटेनमेंट का था और स्पोर्ट्स का, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और मुझे लगता है स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट को अगर जोड़ा जाए तो एक ही
बहुत ही एक डेंजरस चीज बनती है और एक धमाका बनता है, और इस कबड्डी ने कर दिखाया इस स्पोर्ट के साथ। इस चमकते सिक्के का धमाका हम 4 दिसंबर को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पंडित जी। एंड अभिषेक, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मैंने हमेशा देखा है कि आपको आप स्पोर्ट्स कहा तो इट्स यू देयर सबसे आगे। यू बीन वेरी वोकल अबाउट योर सपोर्ट फॉर एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट। आपकी फुटबॉल टीम भी है, कबड्डी टीम भी है, एंड कुड बी मोर प्लान्स टू वेंचर इनटू मोर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बारे में ऐसा क्या है जो आपको इतना इंस्पायर करता है, इतना एक्साइट करता है? सचिन, मेरे लिए आई वुड प्रॉब्ली से कि शायद स्पोर्ट के साथ जो पैशन और जज्बा जो जुड़ा हुआ है, दैट अट्रैक्ट्स मी। लेकिन उससे सिर्फ एज अ व्यू अगर आप देखें, फॉर मी पर्सनली खेल ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कैरेक्टर बिल्डिंग। you know, 1 minute left on the clock, you're down 2 points, and how you can still believe and work towards going and getting a Super 8 and achieving 3 points and winning the match. A never say die attitude, sportsman's spirit, teamwork, team building, leadership. These are all qualities that sports teach you, especially team sports. How to deal with adversity, how to make a comeback, how to bounce back, how never to lose belief in yourself, how to have belief in yourself. So there's so many qualities that sports teaches you, and these are all things that attract me. And I felt in Kabaddi, all of this really comes to the fore because all these qualities are required. It is an individual effort, but it's also a team sport. It is a sport which requires not just the front end staff, but the back end staff, people on the mat. So Kabaddi is just a wonderful, wonderful sport, and I'm so excited that you know, the world is going to get to see a different side of the sport. True. And Abhishek, as you rightly said, you know that we can draw parallels with real life in sports, and that's what, you know, can change lives for several, and it has done for several of our Kabaddi stars here. Thank you so much. We're looking forward to this sports docu-series. Ladies and gentlemen, एक बार फिर से मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं Amazon Prime Video और BBC Studio India की first ever sports docu-series in India का trailer, Sons of the Soil, Jaipur Pink Panthers. Can we have the audio visual, please? Once a Panther, always a Panther, the inspiring sports docu-series we look forward to. And with that, we open the floor for Q&A, and I'll be addressing the questions. And we've got a couple of questions from the media here already. First question is for Srinivas Reddy from Abhimanyu from Delhi Times. How different is it coaching a franchise as opposed to the national team? कितना अलग है एक franchise को coach करना और एक national team को coach करना? Sir, national team का can I answer, sir? Yes, please. Sir, national team में क्या होता है, एक क्रीम एक साथ मिलता है। ये जो प्रोफेशनल लीग के अंदर आपको ऐसा बैलेंस टीम मिलेंगे, जैसे नेशनल टीम के आप टूर्नामेंट में जाएंगे, कई 1-2 मैचेस लूज मैचेस मिलेंगे, सेमीफाइनल फाइनल ओनली टफ मैचेस रहता है। बट ये प्रोफेशनल लीग के अंदर आपको हर मैच, हर इवेंट आपको मतलब फाइनल जैसा ही लगेगा, क्योंकि पूरा बैलेंस, हर एक पोजीशन एक पर्टिकुलर कॉर्नर्स हो, कवर्स हो, राइडर्स हो, पूरा बैलेंस के साथ रहता है, 100% प्रिपरेशन के साथ रहता है। तो प्रोफेशनल टीम के अंदर हमेशा रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है। हर मैच हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट टू विन द चैंपियनशिप। तो प्रोफेशनल टीम के अंदर लोगों का उम्मीद भी, फ्रेंचाइजीज का उम्मीद भी है, स्पेक्टेटर्स का उम्मीद भी कहूँगा, खुद का उम्मीद भी ज्यादा रहता है। Thank you so much, sir. Abhimanyu, I hope you got your answer. The next question is for Deepak Nivas Hudda. Question आ रहा है सुबोध मयूरे से from Midday Print. लॉकडाउन के दौरान आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं और हमेशा फिट रहते हैं? देखो, लॉकडाउन के जब स्टार्ट हुआ तब थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन मैंने वैसे ही लॉकडाउन से 10 दिन पहले मैंने काफी सारे इक्विपमेंट्स मंगाए थे अपनी एक्सरसाइजेज के लिए, वेट बैग्स वगैरह, बैटल रोप, काफी चीजें मंगा ली थी मैंने। और तभी लॉकडाउन लग गया, तो मुझे फिटनेस का तो वैसे ही शौक रहता है, तो मुझे काम भी आ गया उस टाइम।
और फिर क्या है, अगर फिट नहीं रहेंगे ना तो फिर पूरा साल खेलेंगे कैसे? इतने बड़े कंपटीशन में खेलना होता है, इंडिया टीम के लिए खेलना होता है। तो मुझे फिटनेस बहुत ज्यादा पसंद है। स्टेडियम्स बंद हो गए थे तो काफी जल्दी सुबह 4 बजे उठ के चले जाते थे, हाईवेज में रनिंग कर लेते थे चुपके से, कहीं जहाँ एकांत में मतलब खुली हवा हो, जहाँ पे कोई लोग आते जाते नहीं थे। सुबह जल्दी चले जाते थे 4 बजे, शाम को 8-9 बजे जाते थे लेट, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन के दौरान हमें अपना ख्याल भी रखना पड़ता था कि कहीं बीमार ना हो जाए, क्योंकि कोरोना ज्यादा फैल गया था। और मोस्टली अपने घर की छत पे करता था, क्योंकि इक्विपमेंट्स थे मेरे पास, वेट बैग्स वगैरह, तो अपने घर की छत पे काफी करता रहता था। मैं अपने घर में सीढ़ियाँ चढ़ता रहता था, क्योंकि अगर सबसे एक एथलीट को फिट रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक बार वेट बढ़ गया ना, फिर उसको हम बार बार वेट कम करेंगे, फिर उसमें कमजोरी ज्यादा आती है, हमारी बोन्स की कमजोरियां ज्यादा आती है। इसलिए मैं मेंटेन ही रखता हूँ पूरा साल। सो बेसिकली हम जो बहाने बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, जिम बंद है, ये बंद है, ये बहाने होने नहीं चाहिए, एक्सक्यूजेस कभी देखो बनाने नहीं चाहिए, और सिर्फ आगे सचिन भाई, एक्सक्यूजेस तो लाइफ में आप किसी भी स्टेज पे बना सकते हो। मेरे माता पिता दोनों की डेथ हो गई थी, मैं एक्सक्यूज बना सकता था कि मुझे संभालने वाला कोई है नहीं लाइफ में, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। इतनी छोटी उम्र में माता पिता के जाने के बाद ऊपर से फिर मेरी सिस्टर जो मैरिड थी वो भी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से घर आके रहने लगी थी। उनके बहुत 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता था और फिर सुबह 3 बजे कबड्डी प्रैक्टिस के लिए उठता था। उस टाइम सचिन भाई मतलब स्ट्रगल इतना था लाइफ में, मैं बता नहीं सकता कि मतलब इतने बुरे दिन देखे थे कि कई बार ये सोचना पड़ता था कि कल बच्चों के स्कूल की फीस कहाँ से लेके आऊंगा। लेकिन मैंने कभी गिव अप किया नहीं, क्योंकि एक्सक्यूज सिर्फ एक बहाना होता है। हम ढूंढते हैं कि अगर मैं कुछ काम नहीं करना चाहता तो मैं एक्सक्यूज ढूंढूंगा कि मैं इसका क्या बहाना बनाऊं। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं लाइफ में, बस आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि कुछ करना है, और कुछ भी मुश्किल नहीं है लाइफ में। थैंक यू हमें एक बहुत अच्छी सीख देने के लिए कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच। We move on to our next question, which is for Abhishek Bachchan from Runa, Web Dunya, and Ashish from Viva Football Magazine. The question is, Pro Kabaddi League के बाद कबड्डी became very popular. आपको लगता है कि आज भी इस देश में मिट्टी से जुड़े खेल के लिए एक ना एक अभिषेक बच्चन या हीरो की जरूरत होती है? जी नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ। जब प्रो कबड्डी की शुरुआत हुई थी तो बहुत से लोगों ने ऐसा कहा था कि देखिए अभिषेक बच्चन ने ये टीम ले लिया है, उनके जितने भी दोस्त हैं वो सब, हमारा जो पहला मैच था मुंबई के खिलाफ 2014 में, उसमें मेरा परिवार, मेरे कई फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त आए थे। उन्होंने कहा था कि ये तो बस ग्लैमर की दुनिया में ये दिखाएंगे और ये ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन अगर आप देखें जो स्टैंड में हो, वो भले बहुत इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स क्यों ना हो, अगर मैट पे जो हो रहा है, अगर वो सुपरस्टार्स नहीं होंगे तो खेल का कुछ नहीं होने वाला है। और कबड्डी ने ये दिखा दिया है सबको कि जो कोई हो स्टैंड में उससे कुछ होता नहीं है। असली सुपरस्टार्स तो हमारे खिलाड़ी हैं और मैट पे हैं। The खेल of kabaddi, the game of kabaddi had to win, and it's taken over. If I can use Sachin, if I can use whatever little celebrity hood I have to help bring a certain amount of spotlight to a sport, I'm very happy to do that. I just want to say, I mean, it's a bit embarrassing, but you know, if you see the artwork that Amazon has wonderfully put together for the docu-series, the most prominent figure is me, and it's very embarrassing. And you know, my first reaction was, hello, this is about the boys. But you know, if I can help bring a certain amount of attention, albeit very little, to tell the story which is entirely about these boys and their lives behind the scenes, off the mat, I'm happy to do that. But no, I firmly believe that you do not need a celebrity to popularize these sports. Kabaddi, once you see the game of Kabaddi, it's going to take over your life. I have so many friends, Sachin, and you've been such a wonderful part of the PKL journey. And so many of my friends from the film industry, who are not from the film industry, who are just working professionals. And I said, just come for one match. And if you can't come for one match, ek baar,
आप इसे टीवी पे देख लीजिए, and I promise you, you will be hooked. And that's exactly what has happened. There's so many new fans of Kabaddi today because the sport is just great. So to answer the question, if it helps bringing a spotlight and shining a bit of attention for then the players and the sport to take over, I'm happy to do that. But no, Kabaddi does not need a celebrity. और जो मिट्टी से जुड़े हुए हमारे खेल हैं इस देश के, they don't require any celebrity. They're brilliant by themselves. Thank you, Abhishek, and I would personally want to thank you as well for adding value on his sport को चार चांद लगाने के लिए. Thank you. And the next question is once again for you. It says that it's from Aparna it's for Aparna. I'm sorry for that. It's for Aparna from Nisha Best Media Info, and the question is, Aparna, have you played Kabaddi? Any fond memories you can share? Play Kabaddi. खेला नहीं है लेकिन देखा जरूर है और चीयर बहुत किया है, कबड्डी 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 बोल के. So, Aparna, can I get you to do that? Like, how do you do that? Kabaddi, like it's called a Kabaddi cant. कबड्डी 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 कबड्डी. Thank you so much for being a sport. Thank you, Aparna. Thank you. Well, next question is for Sandeep Dhul. Haven't mentioned the name and who's it's come from, but Sandeep, अगला सवाल आपके लिए है. Being so young, you've seen your life change so much, and because of the popularity of PK. Okay, इतने आप जवान हैं, आपकी जिंदगी में काफी सारे changes आए हैं PKL की popularity के बाद. आपका experience इस series का हिस्सा बनने में? हाँ जी, कबड्डी प्रो कबड्डी आने से हमारे गेम का बहुत लेवल ही बहुत हाई हो गया पहले से, और सभी प्लेयर्स की लाइफ भी चेंज हो गई है पहले में और अभी में. और इस सीरीज में ये दिखाया गया है कि कबड्डी प्लेयर्स क्या करते हैं. मैच पे तो सभी देखते हैं टीवी में, और मैच के बाहर जो भी होता है वो दिखाया गया है सीरीज के दौरान. थैंक यू. हमें देखना है कि क्या क्या बदलाव आया और क्या क्या चमकती दुनिया के आप जो हिस्सा बन गए हैं आपके हुनर की वजह से. सो विश यू ऑल द बेस्ट. अगला सवाल है अमित हुड्डा के लिए. विजय सेन फ्रॉम स्पोर्ट्स कीड़ा. आपकी और संदीप धुल की जोड़ी जो है वो, इन्होंने सवाल पूछा पर उसमें थोड़ा ऐड कर रहा हूँ. जय वीरू की जोड़ी है, एक डिफेंसिव कॉम्बिनेशन है. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जेपीपी में रिटर्न करने का सीजन 7 में, और संदीप धुल के साथ आपका कॉम्बिनेशन? संदीप डुल के साथ मैं यहाँ भी काफी टूर्नामेंट, हम जो टूर्नामेंट होते हैं हमारे यहाँ लोकल, तो काफी हम साथ में ही खेलते हैं, तो हमारा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है. वो आपको ये जो सीरीज आ रही है इसमें देखने को भी मिलेगा कि हमारा कॉम्बिनेशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है दोनों कॉर्नर्स की. Well, thank you Amit, thank you so much. और अगला सवाल है दीपक निवास हुड्डा. once again it's from विजय सेन, स्पोर्ट्स कीड़ा. जयपुर, पिछले सीजन में जयपुर के पास एक बैलेंस स्क्वाड था, बट वो प्लेऑफ्स में जा नहीं पाए. इवन इफ यू कुडंट क्वालिफाई, अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, फिर भी पिछले सीजन से आपने क्या क्या पॉजिटिव चीजें गेन की है? दीपक निवास हुड्डा. हेलो सचिन भाई, दोबारा रिपीट करना प्लीज. हाँ, मैं रिपीट करता हूँ कि जयपुर पिंक पैंथर्स जो है पिछले सीजन एक बैलेंस स्क्वाड था, पर वो प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाए, क्वालिफाई नहीं हुए, फिर भी क्या क्या पॉजिटिव चीजें थी जो आपने पिछले सीजन से गेन की, हासिल की? भाई, हमने इतनी बेहतरीन शुरुआत की थी, जैसे इस डॉक्यू सीरीज में भी दिखाया गया है ये बात, कि सबसे दमदार शुरुआत की थी हमने. और ये सब इसलिए कर पाए थे क्योंकि हमने उसकी प्रिपरेशन काफी अच्छी की थी. हमने इतनी मेहनत कर रखी थी, इतना सब कुछ बैलेंस था टीम का. मतलब हमने इतनी धमाकेदार शुरुआत की. स्टार्टिंग के 8 में से 7 मैच जीते हुए हम टॉप पोजीशन में चल रहे थे, लेकिन एकदम चेन्नई, हम जैसे ही चेन्नई लेग में पहुंचे, मैं और टीम के 2-3 और इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बीमार हो गए. नीलेश सोलंकी बीमार हो गया था, मैं खुद हो गया था, और 2-3 प्लेयर्स को इंजरी हो गई थी. अमित था उनमें, विशाल लाठर था. तो टीम का बैलेंस रहा ही नहीं, क्योंकि टीम का जब 3-4 प्लेयर इंजर्ड या बीमार हो जाती है, जो कि मेन प्लेयर है फर्स्ट 7 में खेलने वाले, तो फिर टीम का मनोबल डाउन हो जाता है. ये इस डॉक्यू सीरीज में देखने को मिला कि हम इतने जरा परेशान हो गए थे उस टाइम कि परफॉर्म कैसे करें. बीमारी में भी हमने खेल के कोशिश की टीम के लिए कि शायद हम मैच जीत सके, लेकिन वो हुआ नहीं. तो
काफी कुछ तो सीखने को मिला हमने, लेकिन हमने इतना कुछ गलत किया नहीं, क्योंकि थोड़ी कंडीशन ही ऐसी होगी, थोड़े हालात ही ऐसे हो गए थे। लेकिन फिर भी हम ये सीखे कि इन सब के बावजूद हमने कई मौकों पर अपना पेशेंस खोया है, कई मौकों पर हमने गलतियां की, क्योंकि कई मैच हम जीतते जीतते लास्ट के 4-5 मिनट में हमने मैच लूज किए। और इतने बड़े मंच पर आप खेल रहे हैं, तो हम 3-4 पॉइंट से ही क्वालिफाई करने से रह गए। बेंगलोर 3-4 पॉइंट अप रहा हमसे क्वालिफाई करने में। तो जो एक मैच हमने 2 मैच इक्वल किए, जीते हुए मैच हमने 2 मैच जीते हुए हमने लूज भी किए हैं। तो एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट होता है इतनी बड़ी स्टेज पर। और जो स्टार्टिंग में हम एक फैमिली की तरह हम इतना घुल मिल कर रह रहे थे, जैसे टीम हारने लगी हमने वो बैलेंस भी खो दिया। तो वो सब चीजें हमने सीखी इस जो लास्ट सीजन हमारा गया, कि हम काफी कुछ बेहतर कर सकते थे। हमने इससे पहले भी हम 6 सीजन खेल चुके थे, लेकिन फिर भी वो उतना मेंटेन नहीं कर पाए। ये सब कुछ सीखने को मिला हमें इस सीजन से। और इंजरी को भी कैसे अवॉइड करना है, क्योंकि कुछ इंजरियां हमने फिटनेस तो बहुत ज्यादा कर रखी थी, लेकिन फिर भी इंजरी हुई, तो उनको कैसे अवॉइड करना है और अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाना। काफी कुछ सीखा हमने इससे। और स्पेशली ये कि हार जीत तो एक खेल का पार्ट है, बस हमें फाइट करते रहना चाहिए। वो इस डॉक्यू सीरीज में भी बहुत अच्छी तरह देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने लास्ट तक फाइट किया है। हमारी टीम की कंडीशन बहुत ही बेकार हो चली थी, ये फैक्ट है, क्योंकि हमने बैलेंस भी खोया था, टीम का मनोबल भी डाउन हो चुका था, हम परेशान भी बहुत हो चुके थे। टीम का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो भी बहुत ही मतलब इतना परेशानी भरा रहता था, लेकिन फिर भी हमने लास्ट तक गिव अप नहीं किया। ये सबसे अच्छी चीज सीखी हमने। और अभिषेक सर ने हमें पूरे सीजन के दौरान हमें बस यही कहते रहे कि कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे, ठोकेंगे सबको, चाहे हमारी मतलब टीम का पोजीशन कितना ही डाउन हो, प्लेयर बीमार हो, इंजर्ड हो, टीम का मनोबल डाउन हो, पूरे सीजन थ्रू आउट द सीजन लास्ट मैच तक उन्होंने हमें यही मोटिवेट करते रहे। तो मुझे लाइफ में पहले भी मैंने प्रॉब्लम्स देखी, लेकिन अभिषेक सर से इस लास्ट सीजन से मैंने ये जरूर देखा कि आपने प्रॉब्लम्स देखी है लाइफ में, लेकिन आपको पूरी लाइफ ही देखनी पड़ेगी और उनको फाइट करते रहना होगा। हर स्टेज पे लाइफ के हर मोड़ पर हमको प्रॉब्लम्स मिलती हैं, और अभिषेक सर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया। और अगर अगले सीजन हम फिर से इसी टीम, ये सेम टीम अगर खेलती है, तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्वालिफाई नहीं, हम फाइनल जरूर खेल रहे हैं, क्योंकि ये टीम दमदार थी और दमदार है और रहेगी। हम सभी और रहेगी। और हम सभी बॉयज फाइट करने से पीछे नहीं हटेंगे, और हमारा नेक्स्ट सीजन दोबारा वही फाइटर की तरह शुरू होगा, फाइटर की तरह खत्म होगा। एब्सोल्युटली, यही तो क्वालिटीज हैं एक ट्रू फाइटर की। थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू। और मेरा सवाल है अगला अभिषेक से। अभिषेक, द क्वेश्चन इज व्हाट हैव बीन द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग अ कबड्डी फ्रैंचाइज? Well, personally for me, Sachin, my biggest challenge is I think I get too emotionally involved with my players. It's very difficult to take shrewd decisions, which is what I think as a team owner and as management, you need to take those cold decisions for what is best for the team and for the fans. That becomes very difficult for me with the boys. I forge, like you saw in the promo, I treat them like family. They are my family, and once a Panther, always a Panther. But for me personally, what comes in the way is I get very emotionally involved. It's very difficult, especially during the auction time, to decide who to keep, who to drop. Even during the season, when the coaches decide what the team is, it becomes very difficult for me to switch off to them emotionally as human beings. But that is what is required in sport. You need to have somebody who's going to take those difficult decisions. For me, that's the most difficult part. Indeed, it is. It is, and we've seen you. I've seen you personally during auctions. Those 3 days quite tough. But thank you so much. Thank you, Abhishek. For giving us Jaipur Pink Panthers and bringing us being a part of Sons of the Soil. Well, with that, we come to the close of the media Q&A. We will have more opportunities to talk to the players, but due to time constraint, we'll have to call it a wrap. चलिए इस लम्हे को कैप्चर करते हैं और आज के इस हसीन एक्सपीरियंस को हमारी यादों में एक जगह देते हैं with a group selfie. So can I request all of you to please join us on screen for a group selfie? And it's a moment to be captured. Because on the 4th of December, we are going to witness that dhamaka, as Bunty ji said. Across 240
countries and territories. So we look forward to that. Thank you once again to each and everyone for joining us. Thank you, Abhishek. Thank you, all the players. Thank you. Coach Sahab. Thank you, you, sir. Aparna. Thank you, Sameer. Thank you, everyone. Bunty ji, thank you so much for joining in. And we look forward to the 4th of December. तो दोस्तों, ये था आज का एक हसीन सफर, एक सफर जिसने हमें असली सन्स ऑफ द सॉइल से रूबरू होने का मौका दिया है और झलक दी है उस सफर की जो Amazon प्राइम वीडियो लेकर आ रहा है 4 दिसंबर को, मिट्टी से मैट और मैट से आपके स्क्रीन तक. Amazon Originals Sons of the Soil Jaipur Pink Panthers will be streaming on the 4th of December across 240 countries and territories. We look forward to that. Once again, thank you so much for joining in. And this is Sachin Kumbar signing off. And as they always say, Lepanga. Thank you. कबड्डी. इस खेल को कुछ लोग कबड्डी तो कुछ लोग हुतुतु के नाम से जानते हैं. इस खेल का जन्म हुआ तमिलनाडु में करीब 4000 साल पहले और पिछले कुछ सालों में मिट्टी का ये खेल मैट पे आ चुका और आपके घरों तक टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू पहुंचा थ्रू प्रो कबड्डी लीग. प्रो कबड्डी लीग के जरिए से हमें मिले भारत की कुछ ऐसे स्टार्स जो हमारे दिलों के स्टार्स, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए. और पिछले कुछ महीनों में असली मायने में जिंदगी ने हमसे भी पंगा लिया है. हमने भी उसका सामना एक ऑलराउंडर की तरह किया है, एक सुपर प्लेयर बनकर किया है. और इस फेज में जो गुजर रहे हैं हम फिलहाल, इस फेज में हम काफी कुछ सीखे हैं और इस नए नॉर्मल को हमने बखूबी से अडेप्ट भी किया है. इस डिफिकल्ट टाइम्स ने हम सबको एक चैंपियन की तरह बनाया और आज हम सब ऐसे ही एक चैंपियन टीम को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जिसने कबड्डी में 4 चांद लगा दिए. इस टीम ने इनॉग्रेल चैंपियनशिप और हमारे दिलों को दोनों को जीता और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया. नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सचिन कुंभार. आप सभी का स्वागत करता हूं Amazon Originals Sons of the Soil जयपुर पिंक पैंथर्स के ट्रेलर लॉन्च पे. Sons of the Soil एक ग्रिपिंग स्पोर्ट्स डॉक्यू सीरीज है जो प्रो कबड्डी लीग के शानदार टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के सफर की और उनके पर्दे के पीछे की कहानियां बताता है. Once again, a rocky welcome to all of you to the trailer launch of Amazon Prime Video presents Sons of the Soil Jaipur Pink Panthers, releasing on the 4th of December on Amazon Prime Video, जिसे आप 240 देशों और टेरिटरीज में देख सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं अपर्णा पुरोहित से जो Amazon Prime Video इंडिया के ओरिजिनल्स को हेड करती है. She and her team are the powerhouse behind super hits like Mirzapur, Patalo, Fomo Shots, Please, and many more. A rocking welcome, Aparna, and thank you for joining us. And many congratulations to you and the team. Thank you so much. Good afternoon, everyone. I'd like to extend a very warm welcome to all the members of the press. This is a very momentous occasion for us as we foray into the world of sports docuseries with a sport that is synonymous with team spirit, passion, and is truly entrenched in our soil, Kabaddi. And how fortunate are we that we got to follow one of the most dynamic Kabaddi teams, Jaipur Pink Panthers. I'd like to express my deep gratitude to Abhishek for placing so much trust in us and giving us this unprecedented access to his team and their stories. At Amazon Prime Video, we have always endeavored to bring diverse and gripping stories to our audiences. And today with Sons of the Soil, Jaipur Pink Panthers, we are officially announcing our foray into sports docuseries in India. Amazon Prime Video में हम बहुत ध्यान से सुनते हैं कि हमारे दर्शक क्या देखना पसंद करते हैं, क्या देखना चाहेंगे और फिर कोशिश करते हैं कि उनकी पसंद का कंटेंट उन तक पहुंचा सकें. Kabaddi as a sport enjoys tremendous following, not just in our country but across the world, and especially since the inception of Pro Kabaddi League in 2014. People know the sport; they have consumed it voraciously on television sets, live on the ground. It is our effort to bring the human stories of the players behind the sport through the series. The series will offer a behind-the-scene peek into the players' steadfast persistence, their rigorous preparation, hard work leading up to preparing for a match of Kabaddi. And the reason that we chose to highlight Jaipur Pink Panthers is because of the incredible stories of the players. Their never say die spirit. The fact that the journey is as important as the destination for the players here. And we are thrilled to be able to bring this beautiful journey of the inspiring team to the audiences, not just in India, but viewers across 240 countries and territories.
I'm really fortunate. Thank you, Aparna. Thank you so much. And aptly said, Jaipur Pink Panthers. It is because they are the inaugural champions. They created that history and that craze. So definitely it is. We look forward to it. We're sure कि ये सफर बड़ा ही challenging and exciting रहा होगा आप सबके लिए. But I'm sure it's an amazing thought to bring us Amazon India's first ever sports jockey series, Sons of the Soil. Jaipur Pink Panther. Thank you once again. And I have a humble request to the others to please stay on mute. मेरी दरख्वास्त है कि please आप सब अपना mic mute पर रखें. Whenever I ask a question, that's when you open up the mics, then so that the others don't get disturbed. Thank you so much. Well, दोस्तों अब मैं introduce करना चाहूँगा BBC Studios India business head Sameer Bhokte ji ko. BBC Studios is behind big shows like Top Gear, Dancing with the Stars, Dr. Foster, to name a few. And it's a warm welcome to Sameer. Sameer, can you briefly tell us on the entire experience of shooting and what are the things that fans should look out for once the docu-series is available to stream on Amazon Prime Video? Sameer? Yeah, thanks, Sachin. I think it's been an extremely inspiring, fun, and fulfilling experience. We are extremely grateful to JPP for opening their hearts. और सबको दिखेगा the honesty of the players. The fans should expect a very honest and a raw piece of content. We'll get to see a sport which is really from the heartland of India, and to see these humble and dedicated players go out there and sweat it out is what's enjoyable for the fans. And I think one thing surely that we all will see is that a very passionate and a candid version of Abhishek, which nobody has ever seen. And the show will take you through a journey of these owners, what they go through with their teams. They live it. They live that moment. They experience the highs, they experience the lows. And this is one thing that one will definitely see in this show. Kabaddi hamara sport hai. It's truly ours. And I hope the fans own this show once they see this. In that brief moment, you actually took us through the entire journey. Thank you so much, Sameer. Thank you so much. Well, I'm sure कि ये जो एक नया सफर BBC India Studio और Amazon Prime Video का शुरू हुआ है, वो एक चैंपियन की तरह हमेशा सक्सेसफुल रहेगा. Thank you once again. और दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस मोमेंट का जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था. वक्त आ गया है इस अल्टीमेट पंगे की पहली झलक देखने का, जो प्रो कबड्डी के बेताज बादशाह टीम है जयपुर पिंक पैंथर्स, उनकी कहानी, उनकी जुबान. Ladies and gentlemen, presenting to you Amazon Prime Video's first ever sports docu-series in India, Sons of the Soil, Jaipur Pink Panthers ka trailer.